ईश्वर पर, चेतना पर, कॉन्शियसनेस पर, आत्मा पर साइंस में भी शोध बहुत तेजी से होने लगेगा। उसका रीजन है एआई का आ जाना। एआई जैसे जैसे काम करते जा रहा है, अब वैज्ञानिकों में ये क्यूरियोसिटी भी आ गई है कि क्या एआई, क्या आगे आने वाले कंप्यूटर्स सेल्फ अवेयर हो पाएंगे? क्या जैसे Before we move on to the AI aspect, what was my point? Oh, the science of spirituality. I have run across a study that basically went like this. They had a spiritual leader in an MRI machine, and then they had a patient in another MRI machine down the hall, and a lot of times even across the street in another building or down the block. But when the spiritual leader started his prayer process, a certain part of his brain lit up with activity, and almost simultaneously, the patient down the hall, across the street, down the block, the same area of their brain started lighting up almost instantaneous. And they have done this on a repetitive basis to the point where I think it's past a hypothesis to where it's actually a proved theory. So prayer works, guys. There's your proof right there. If you're watching this in the West and you're a material guy like I am, I mean, it's hard to shake, but there's your proof. I know it sounds like black magic, but it works. Shut up, Wes. इंसान सोचता है, जैसे इंसान अवेयर है, जैसे इंसान के पास कॉन्शियसनेस है, क्या ये हमारे कंप्यूटर्स, क्या एआई के पास भी इस तरह की कॉन्शियसनेस उनके पास भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। और जब चेतना का विषय आएगा, जब विज्ञान चेतना Sorry, last time I stopped for a minute. What do you guys think about AI and consciousness? I believe that we receive consciousness as a signal from an outside source. And if that's the case, AI will be able to tap into it and be conscious. Now, if it's something that's produced inside our head, which, I mean, it's a possibility, we don't know. We don't know what it is. I think we swim in it. I think that's what dark energy is basically that just no light reflects off of it, so it seems spooky, but I think that's our consciousness and the fabric that holds us all together to all make God. First off, philosophy is a confession. Philosophy is a confession. Go love somebody that you don't like. Hey, what's happening, knowledge seekers? Thanks for clicking on the link. WTJ Knowledge Drops back with another reaction video for you guys. More on that in a second, though. If you are new, welcome. If you're not, welcome back. If you are a returning knowledge nomad, as usual, we don't have the time for me to express my gratitude for the support. Thank you from the bottom of my heart. If you are new, welcome. My name is Wesley Travis Johnson, and this is my channel, WTJ Knowledge Drops, where spirituality meets science, and I try to blend Eastern and Western spirituality, sprinkle in a little hard-earned life lessons, and we just call it philosophy. If that sounds like something you'd be interested in, please consider subscribing and becoming a knowledge nomad. If you do, please remember to hit the bell with all notifications so you can stay in the loop and never miss a drop. Also, my niche is very, very, very targeted, and there's very few of us. So if this is something that you're interested in, I need you. Please subscribe. There's just a very select few of us. So, all right, like I said, this is another reaction, and it is
7 mind-blowing proofs of God from Hindu philosophy. It is from the HyperQuest channel. This channel, as of so far, has been basically all Hinduism. I've been exploring it. If you are new, there's going to be plenty to go back on. If you're new to Hinduism, it's a beautiful, beautiful spirituality. And notice I didn't call it a religion, because it's not. Alright, shut up, boys. Let's get right into it. Alright, from this point forward, if you back out, your device will explode. So please stay to the end so you can save your device. Alright, 7 Hindu proofs of God from Hindu philosophy. Sorry, I said that wrong. 7 mind-blowing proofs of God from Hindu philosophy. First time seeing it, we're going to explore it together unless you've already seen it. But let's get right into it. जब से मानव इस धरती पर है, ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले ये दोनों लोग समाज में हमेशा से रहे हैं। ये आस्तिक और नास्तिक आपस में डिबेट भी करते आए हैं, लेकिन हजारों वर्षों की इन डिबेट्स के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है। I'm not sure if I mentioned it, but if you haven't noticed already, the video is in Hindu, so I have the English translation down below. Hopefully they translate it good for you guys that know Hindi. But it's a good opportunity for you guys to jump in the comment section and let me know what is incorrect. I need the engagement. Alright, shut up, boys. Let's go. कि आस्तिक समाप्त हो गए हों या नास्तिक समाप्त हो गए हों। अब चूंकि आस्तिक ये मानता है कि ईश्वर होते हैं, इसलिए नास्तिकों का कहना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आस्तिकों पर है, यानी ईश्वर को सिद्ध करने का काम आस्तिकों का है। और अगर डिबेट्स को छोड़ भी दें तो एक आस्तिक ईश्वर को क्यों मानता है, इसके पीछे उसके पास क्या क्या तर्क हैं, और ये जो उसके पास तर्क हैं क्या ये पर्याप्त हैं, क्या ये इतने शक्तिशाली हैं कि एक पूरा समाज ईश्वर की सत्ता को मानना शुरू कर दे। बड़ा प्रश्न ये है कि सनातन वैदिक धर्म के ऋषि मुनियों के पास वो क्या प्रूफ्स थे कि वो ईश्वर की सत्ता को मानने लगे थे, और क्या ये प्रूफ्स तार्किक थे जिसके कारण आज भारत के समाज में एक बड़ा वर्ग I've been exploring the Vedic religion, I guess you want to call it a religion, for about a year now, but more on the Advaita Vedanta, non-dualist. It's a beautiful thing if you're not aware with it. If you are new to the Hindu philosophy, notice I did not call it a religion, because it's not a religion. What happened was the West stole spirituality from the East, materialized it, and made it religion. ईश्वर के होने पर विश्वास करता है। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 147 में स्वागत है। आज के एपिसोड में सनातन धर्म के इतिहास में जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने ईश्वर के होने के पीछे जो प्रमाण दिए हैं, जो तर्क दिए हैं, मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। I ditto what he just said. Like and subscribe, guys. अब साथियों, जब बात आती है ईश्वर को प्रूव करने की, तो सबसे पहले ये समझ लेना अति आवश्यक है कि ईश्वर क्या है। जब ये पता होता है कि हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, तभी हम उस चीज को प्रूव कर पाते हैं, और तभी हमें पता चलेगा कि ऋषि मुनियों ने किस ईश्वर को प्रूव किया है। क्या हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ईश्वर को प्रूव किया है जो कहीं आकाश में बैठता है और मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखता है, और जब मनुष्य मरता है तो उसके कर्मों के अनुसार उसको जन्नत या जहन्नुम देता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसे ईश्वर को तर्क से प्रूव कर पाना असंभव ही है। इनफैक्ट ऐसे ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर डिबेट करना या सवाल उठाना कई मजहबों में पाप तक माना जाता है, क्योंकि the Abrahamic version of God here in the West, where there's actually like a VIP club up in heaven. Yeah, that's not real, guys. It's a beautiful story with a very moral compass, but it's not real, guys. Beautiful self-help. Shut up, Wes. Spirituality is better than religion. Religion caused division.
Shout out Owen Batista III. And the only single thing is everything. Shout out Owen Batista III. ऐसा ईश्वर तर्कों के माध्यम से खंडित किया जा सकता है। तो जब किसी चीज को लेकर चर्चा करना या उसका खंडन प्रमाणों के आधार पर करना अलाउड ही नहीं होता है, तो वो चीज तार्किक या साइंटिफिक नहीं हो सकती। तो इसलिए जो तर्क, जो प्रमाण हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने ईश्वर को लेकर दिए हैं, वो ऐसा ईश्वर नहीं है जो कहीं बाहर बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करता है और फिर उस ऑब्जर्व की हुई चीजों के आधार पर मनुष्य को जन्नत या जहन्नुम या फिर हेवन और हेल देता है। ऋषि मुनियों ने या उनके दर्शन ने तर्क के आधार पर जिस ईश्वर को प्रमाणित किया है वो वैदिक ईश्वर है और उसकी परिभाषा आपको वेदों में और उपनिषदों में कई जगह पर मिल जाएगी। मैं एक परिभाषा यहाँ पर दे देता हूँ। यदि आप यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र को पढ़ें या फिर ईशावास्य उपनिषद के 8वें मंत्र को सीधा पढ़ें, तो जो परिभाषा दी गई, I love how you guys narrate all this stuff. I did go through the Katha Upanishads, mantras 1 through 20. There will be a link at the end of this video if you want to go down that road. It's a beautiful thing, guys. It's not a religion. I like how y'all's religion is basically philosophy. I love that. I'm trying to blend it over here with us in the West. Guys, we need to start thinking more about religion as a philosophy and less as a cult. Religion's weird, guys. Just stick with spirituality. Be spiritual. Love yourself so that you can love your other people that you don't like so you can love yourself properly. Any hate for the other person is going to reflect back onto yourself when you look in the mirror. I promise. Shut up, Wes. है वो ईश्वर की ये परिभाषा है कि ईश्वर परियगात यानी सब ओर से व्याप्त है, शुक्रम यानी कि तीव्रगामी सर्वशक्तिमान है, इसके बाद अकायम यानी कि शरीर रहित है, उसका कोई शरीर नहीं है, फिर अवृणम जब शरीर ही नहीं है तो उसको कोई छेद या भेद नहीं सकता, उसको घाव नहीं हो सकता, अस्नाविरम यानी कि वो किसी नाड़ी, अस्थि, मज्जा, मांस आदि से नहीं बना हुआ है, फिर शुद्धम यानी वो अविद्या आदि दोषों से मुक्त है, उसका ज्ञान शुद्ध है, फिर अपाप विद्धम यानी वो पापों से सदा मुक्त है, यानी वो कर्म फल से जीव की तरह नहीं बंधा हुआ है, फिर कवि यानी सब कुछ जानने वाला है, मनीषी है यानी सबके मन को प्रेरित करने वाला है, परिभू यानी सब पर स्वामित्व रखता है और स्वयंभू यानी खुद की सत्ता के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी माता पिता से नहीं पैदा हुआ है, फिर याथा तथ्यतः शाश्वतीभ्यः समाभ्यः यानी यथार्थ रूप से, ठीक ठीक रूप से, आदन काल से ही प्रजाओं में समान रूप से अर्थात व्यदधात सभी पदार्थों को रचता है और बांटता है। तो ऐसे ईश्वर को जो इस प्रकार कार्य करता है, जिसका ऐसा स्वरूप है, ऐसा ईश्वर वेदों में बताया गया है और इस ईश्वर को लेकर ही हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन किया है और तर्क के आधार पर ईश्वर की ऐसी सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास। I did a video on the actual Vedas as well. If you are new to this channel, you got some work to do, buddy. It's gonna be a beautiful afternoon, though. I'm like 50 watch hours from being monetized, so you guys watch, please. Push me there. We're almost there. It's a year to the date today, guys. So I think I'm doing pretty good. Considering I react to probably the most boring content on the internet. There's only a real select few of us, guys. That's why I need you to subscribe. If you remotely like this type of stuff, even remotely, I need you. किया है। तो जितने भी प्रमाण मैं आगे देने वाला हूँ, जितने भी लॉजिक देने वाला हूँ, आर्गुमेंट्स करने वाला हूँ, वो ऐसे ईश्वर के लिए ही हैं, वो किसी अब्राहमिक गॉड पर नहीं अप्लाई होते। इसलिए वीडियो के आरंभ में ही इस चीज को क्लियर कर देना अति आवश्यक था। दूसरी बहुत बड़ी चीज कि हम भगवान या ईश्वर को लेकर इतनी चर्चा करते ही क्यों हैं। आज विज्ञान है, आज हमारे पास वो सामर्थ्य है, शक्ति है कि हम चीजों को विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं, या फिर जो आज कठिन लगता है हो सकता है कि कल धीरे धीरे उसकी भी समझ हो जाए। तो हमें ईश्वर पर चर्चा ही क्यों करनी है, वो भी ऐसी चीज जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो हमें सामने से नहीं दिखती, उस पर इतना लॉजिक लगाने का
क्या मतलब है। तो साथियों, आज वो समय आ गया है, मैं गारंटी लेता हूं कि आप देखेंगे अगले 10-20 सालों में ईश्वर पर, चेतना पर, कॉन्शियसनेस पर, आत्मा पर साइंस में भी शोध बहुत तेजी से होने लगेगा। उसका रीजन है एआई का आ जाना। एआई जैसे जैसे काम करते जा रहा है, अब वैज्ञानिकों में ये क्यूरियोसिटी भी आ गई है कि क्या आगे आने वाले कंप्यूटर्स सेल्फ अवेयर हो पाएंगे, क्या जैसे Before we move on to the AI aspect, what was my point? Oh, the science of spirituality. I have run across a study that basically went like this. They had a spiritual leader in an MRI machine, and they had a patient in another MRI machine down the hall, and a lot of times even across the street in another building or down the block. But when the spiritual leader started his prayer process, a certain part of his brain lit up with activity, and almost simultaneously, the patient down the hall, across the street, down the block, the same area of their brain started lighting up almost instantaneous. And they have done this on a repetitive basis to the point where I think it's past a hypothesis to where it's actually a proved theory. So prayer works, guys. There's your proof right there. If you're watching this in the West and you're a material guy like I am, I mean, it's hard to shake, but there's your proof. I know it sounds like black magic, but it works. Shut up, Wes. इंसान सोचता है, जैसे इंसान अवेयर है, जैसे इंसान के पास कॉन्शियसनेस है, क्या ये हमारे कंप्यूटर्स, क्या एआई के पास भी इस तरह की कॉन्शियसनेस उनके पास भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। और जब चेतना का विषय आएगा, जब विज्ञान चेतना Sorry, last time I stopped for a minute. What do you guys think about AI and consciousness? I believe that we receive consciousness as a signal from an outside source. And if that's the case, AI will be able to tap into it and be conscious. Now, if it's something that's produced inside our head, which, I mean, it's a possibility, we don't know. We don't know what it is. I think we swim in it. I think that's what dark energy is basically that just no light reflects off of it, so it seems spooky, but I think that's our consciousness and the fabric that holds us all together to all make God. कॉन्शियसनेस पर काम करेगा, तब आत्मा की, ईश्वर की, वेदों की, उपनिषदों की बात होने लगेगी, क्योंकि ये वो विषय हैं जिन पर उपनिषद व्याख्यान देते हैं। तो ये सबसे सही समय है जब हम ईश्वर पर या आत्मा पर या चेतना पर सबसे ज्यादा शोध करें और इसके विषय में विचार करें। तो ये जो टॉपिक लिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम चेतना और ईश्वर के विषय में विचार करते हैं तो क्या तर्क और प्रमाण हैं जिनके आधार पर ईश्वर की या चेतना की पृथक सत्ता को प्रमाणित किया गया है। आइए एक एक प्रमाण को देखते हैं। साथियों, सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है और इस बात को लॉजिकली समझाने के लिए कि कुछ तो है जो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी फिजिकल रियलिटी के परे है, वो एक कंपोजिट बॉडी आर्गुमेंट रखता है। सांख्य दर्शन को ओरिजिनली कपिल मुनि जी ने डेवलप किया था, लेकिन उनके कार्य को और सूत्रबद्ध करते हुए, कारिकाओं में बांधते हुए एक सांख्य कारिका की रचना हुई थी जिसे ईश्वर कृष्ण जी ने रचा था। और अगर आप इस सांख्य कारिका की 17वीं कारिका देखें तो वहां पर लिखा गया है कि संघात परार्थवात त्रिगुणादि विपर्य अधिष्ठानात् पुरुषः अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेः च। तो बोला जा रहा है संघात परार्थवात। संघात का मतलब होता है जब चीजें आपस में मिलती हैं, जैसे संघनन होता है, और परार्थवात का मतलब होता है। Yeah, cheers from Austin, Texas. It's a beautiful morning. Hopefully it's beautiful where you're at as well. And I'm drinking coffee. What are you sipping on? Let me know in the comments where you're from, rep where you're from, and what you're sipping on. I need the engagement, guys. है दूसरों के लिए होने से। आगे बोला जा रहा है कि पुरुषः अस्ति, पुरुष होता है, चेतना होती है। तो चेतना क्यों होती है? कोई चीज फिजिकल रियलिटी के परे क्यों है? तो इसका आर्गुमेंट दिया गया है संघात परार्थवात, यानी कि कोई भी चीज जो संघनन से बनी है, जो चीजों के जुड़ने से बनी है, जब आप छोटी छोटी चीजों को जोड़कर कोई बड़ी चीज बनाते हैं तो वो परार्थवात होती है, यानी वो दूसरों के लिए होती है, दूसरा उसका उपयोग करता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने लकड़ी ली, आपने कील ली, आपने कुशन लिया,
लिया और उससे कुर्सी बनाई। तो कुर्सी अगर बनी है तो कोई ना कोई उस पर बैठेगा, कोई ना कोई उसका उपयोग करेगा, कुर्सी स्वयं नहीं बैठती। तो इसीलिए कहा जाता है जो कंपोजिट बॉडी है, यानी जो पुर्जा पुर्जा मिलाकर बनी हुई चीज है, उसका कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी चीज उपयोग करती है। जैसे आप पुर्जा पुर्जा जोड़ के कंप्यूटर बना लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति ही करता है, कंप्यूटर स्वयं का उपयोग नहीं करता। हो सकता है आपके मन में ये भी आए कि आज एआई This ties in perfectly to my theory on the meaning of life, which is to be in service to others. So, making parts that put together a whole that benefits all of us, I would consider in that category. What about you guys? Do you think that? Let me know in the comments. का समय है और कंप्यूटर एआई डाटा को लेकर या एआई की मदद से खुद भी काम कर सकता है, मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कंप्यूटर कितना भी काम क्यों ना कर ले और जो वो काम करता जा रहा है उसके फीडबैक पर आगे भी काम क्यों ना करता जाए, लेकिन अंत में ये सारा काम वो किसी ना किसी और व्यक्ति के लिए कर रहा होगा, खुद के लिए नहीं करता है। अब इस प्रेमाइस को अगर हम दार्शनिक स्तर पर देखें तो एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि यदि कुर्सी बनी जो कि पुर्जा पुर्जा जोड़कर बनी थी और उसका उपयोग मनुष्य करता है, तो मनुष्य भी तो पुर्जा पुर्जा जोड़कर बना हुआ है। मनुष्य को भी देखा जाए तो बहुत ढेर सारी सेल से बना हुआ है, अस्थि, मज्जा, मांस आदि से बना हुआ है, तो मनुष्य भी कंपोजिट बॉडी है। तो मनुष्य का उपयोग कौन कर रहा है? अगर इस प्रेमाइस से हम आगे बढ़ें तो हमारा शरीर भी कंपोजिट बॉडी है। इसका मतलब हमें वो उपयोग में ला रहा है जो कंपोजिट बॉडी ना हो। अगर वो भी कंपोजिट बॉडी है तो इसका मतलब है उसको भी कोई उपयोग में ला रहा होगा, और अगर उसको उपयोग में लाने वाली चीज भी कंपोजिट बॉडी है तो उसको कोई उपयोग में ला रहा होगा, और ये चेन हमेशा चलती रहेगी। इसलिए इस चेन को एंड होने के लिए कोई ना कोई ऐसी अंतिम स्थिति चाहिए जो कंपोजिट ना हो। जैसे यदि आपको कहे कि हमारा शरीर ब्रेन चला रहा है, यानी ब्रेन जो है वो उपयोग में ला रहा है, तो फिर ब्रेन भी कंपोजिट बॉडी है। तो ब्रेन को कौन उपयोग में ला रहा होगा? तब ब्रेन को भी कोई दूसरा उपयोग कर रहा होगा। इसीलिए इस कारिका में आगे पुरुष को डिफाइन करने के लिए पुरुष को ऐसे तो डिफाइन किया गया कि संघात परार्थवात, लेकिन आगे कहा गया त्रिगुणादि विपर्य, यानी जो पुरुष है वो कंपोजिट बॉडी नहीं है, वो गुणों से। Bro is giving me a headache with all this. It's like Vedanta all over again. He's going to cause me another aneurysm. This is mind-blowing stuff, guys. रहित है। जो 3 गुण होते हैं जिससे आगे चलकर पूरी फिजिकल रियलिटी बनती है, उनसे रहित होता है। क्योंकि अगर पुरुष भी कंपोजिट हो गया तो कोई दूसरा फिर पुरुष का भी उपयोग करने लगेगा। तो जो हमारा शरीर है, जो हमारा ब्रेन है, जो कि कंपोजिट बॉडी है, उसका उपयोग पुरुष करता है, जिसको हम चेतना कहते हैं या आत्मन कहते हैं। और ये कंपोजिट बॉडी नहीं है, यानी ये किसी चीज से मिलकर नहीं बना है, नॉन फिजिकल है। जैसे ही ये फिजिकल होगा, यानी इसमें कुछ गुण आ जाएंगे और उसकी वजह से ये कंपोजिट बॉडी बन जाएगा। इसलिए पुरुष जो है वो नॉन फिजिकल है। और यदि इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम ब्रह्मांड के स्तर पर लगा दें, क्योंकि ब्रह्मांड भी एक कंपोजिट बॉडी है, ब्रह्मांड भी गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, अलग अलग तरह की एनर्जीज, मैटर से मिलकर बना है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड जो कंपोजिट दिखता है उसका भी उपयोग करने के लिए कोई अन्य चाहिए, लेकिन वो नॉन फिजिकल होना चाहिए उस चेन को एंड करने के लिए। यानी यूनिवर्स के बियॉन्ड कुछ नॉन फिजिकल निर्गुण है, और इसी को तर्क के आधार पर सांख्य दर्शन यहाँ पर प्रमाणित करता है, और इसी को वेदों में ईश्वर कहा गया है, जैसे कि हमने पहले परिभाषा देखी थी। तो साथियों, मैंने सांख्य का ये एक तर्क बताया है। अब आइए वेदांत से एक लॉजिक को देखते हैं जो वैदिक ईश्वर को प्रमाणित करता है। अब साथियों, धर्म को हमेशा अंधविश्वास और पिछड़ेपन से जोड़ा जाता है, जबकि आप देखें तो विज्ञान जहां पर हमें शारीरिक सुख देता है, वहीं धर्म हमें जीवन को लेकर एक मीनिंग और क्लैरिटी देकर हमें मेंटली हेल्दी रखता है। यदि विज्ञान और धर्म साथ साथ आ जाएं तो आप आध्यात्मिक होने के साथ साथ तार्किक भी हो सकते हैं। बस आपको सही ग्रंथ और सही दिशा मिल जाए। और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने शिक्षणम प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, जहां पर सनातन धर्म के सबसे अच्छे ग्रंथों को बहुत ही आसान भाषा में घर बैठे आप अपने फोन पर ही सीख सकते हैं। चाहे वो दर्शन हो या उपनिषद हो, एक एक संस्कृत सूत्र को इस प्रकार समझाया गया है कि आप उसे अपने वर्क प्लेस पर, अपने जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ सकें। और अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा ग्रंथ आपके लिए सही है, तो आप शिक्षणम पर ही एक पर्सनैलिटी असेसमेंट क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपको आपकी पर्सनैलिटी, आपके जीवन और आपकी समस्याओं के अनुसार ग्रंथों को सजेस्ट भी करेगा। और इसके साथ साथ अगले 3 दिनों तक, यानी 25 मई तक, आपको हमारे प्रत्येक कोर्स पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये सबसे अच्छा समय है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़कर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए
कदम बढ़ाएं। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षणम पर दैनिक रूप से अध्ययन अध्यापन करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी का भी शिक्षणम पर स्वागत करता हूं। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, वेदांत में विशेषकर अद्वैत में एक दृश्य विवेक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 चीजों को लेते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि इनमें से दृश्य कौन है और दृष्टा कौन है। यानी कौन ऐसी चीज है जो ऑब्जर्व की जा रही है और कौन ऐसी चीज है जो ऑब्जर्व कर रही है। यानी हम 2 चीजों में एक भेद उत्पन्न करते हैं दृश्य और दृष्टा के आधार पर। और जब हमें पता चल जाता है कि इसमें दृश्य कौन है और दृष्टा कौन है, तो हम दृश्य को Back to science right quick. When it comes to having need an observer, it is now fact we've gone through the motions. If there's no observer, whatever object that is not being observed is in an energy state only until there's an observer, and then it comes to reality. I'm pretty sure that's a proven fact nowadays. I could be wrong. If I'm wrong, let me know in the comments with a slap. Shut up, Wes. This is challenging having to read, I gotta tell you that. छोड़ देते हैं, दृष्टा को पकड़ लेते हैं और फिर ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या ये जो दृष्टा है इसको कोई और तो नहीं देख रहा है। अगर कोई और देख रहा है तो फिर से दृश्य और दृष्टा का संबंध बनता है और फिर हम इस दृष्टा को छोड़ देते हैं जो पुराना था और जो नया दृष्टा है जो इस दृष्टा को देख रहा था उसको पकड़ लेते हैं। और फिर ये प्रोसेस हम करते जाते हैं जब तक हम किसी अंतिम बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां पर केवल दृष्टा बचे। ये तो कॉन्सेप्ट था। इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपको दृश्य विवेक ग्रंथ में पहले ही श्लोक में मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये रिमोट है, तो इस रिमोट को कौन देख रहा है? इस रिमोट को मेरी आंखें देख रही हैं। यानी यहाँ पर दृश्य रिमोट हो गया, दृष्टा मेरी आंखें हो गई, तो एक संबंध बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, दृश्य को छोड़ देंगे और दृष्टा पे आ जाएंगे। अब मैं देखूंगा कि इस आंख को कौन देख रहा है। अगर इस आंख में कोई चेंज आ जाए, मेरी आंख खराब हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो कौन इसको रजिस्टर करेगा, कौन इसको ऑब्जर्व करेगा? तो पता चलता है कि जो मेरा ब्रेन है, जो मेरा मस्तिष्क है, मन है, वो मेरे आंख के चेंज को रजिस्टर करता है। तो एक संबंध फिर से बन गया कि मेरी आंख जब दृश्य बनती है तो उसका दृष्टा मेरा ब्रेन, मेरा मन होता है। अब क्या करेंगे, दृश्य दृष्टा का जैसे ही संबंध बनता है हम दृश्य को छोड़ देते हैं और दृष्टा पर आ जाते हैं। तो अब हम आंख को छोड़ देंगे और मन पर आ जाएंगे। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि मन को कौन देख रहा है। मन में यदि कुछ उथल पुथल हो जाए, मन में अगर कोई विचार उठते हैं तो उनका ऑब्जर्वर कौन है। और फिर हमें यह पता चलता है कि मन में जो चीज उठ रही है उनका ऑब्जर्वर एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, जिसको हम आत्मा कहते हैं या पुरुष कहते हैं या हम साक्षी कहते हैं। साक्षी का मतलब हो गया जिसके पास स्वयं की आंख हो, जो स्वयं से ही चीजों को देख सकता हो। जैसे रिमोट को देखने की शक्ति हमें आंख से मिलती है, आंख को देखने की शक्ति हमें मस्तिष्क से मिलती है, मस्तिष्क को देखने की शक्ति हमें आत्मा से मिलती है। He's blowing my mind. I love the hard problem of consciousness, though. It probably absorbs my mental energy, let's say 18 hours out of a day. I think about it a lot. I forgot my point. I'll remember it in a second. Damn it. है, लेकिन आत्मा को देखने की शक्ति किसी और में नहीं होती। आत्मा के पास स्वयं देखने की शक्ति होती है, इसीलिए इसको साक्षी कहा गया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इससे हम ईश्वर को कैसे प्रूव करेंगे, इस बात में लॉजिक क्या है? तो इस श्रृंखला में यदि आप ध्यान से देखें, जब हम दृश्य और दृष्टा की श्रृंखला बनाते जाते हैं, किसी एक पॉइंट से शुरू होते हैं, उसका दृष्टा कौन है, उसका दृष्टा कौन है, उसका दृष्टा कौन है, और फिर अंतिम दृष्टा तक पहुंचते हैं, तो एक चीज क्लियर होती है। वो एक चीज क्या क्लियर होती है कि जब भी दृश्य और दृष्टा का संबंध बनता है तो जो दृश्य होता है वो एवर चेंजिंग होता है, उसमें हमेशा चेंज होता रहता है, और जो दृष्टा होता है वो चेंजलेस होता है। यदि दृष्टा में चेंज होने लगेगा तो वो दृश्य के चेंज को रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा। आप सोच कर देखिए, इतना सब कुछ चेंज हो रहा है हमारे चारों ओर, और उसमें अगर हमारी आंख भी चेंज होने लगे, यानी हमारी आंख के देखने की कैपेसिटी हर पल चेंज होने लगे, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चेंज संसार में हो रहा है या हमारी आंख में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो संसार में हम चेंज को तभी ऑब्जर्व कर पाते
आते हैं जब हमारे आंख की कैपेसिटी चेंज नहीं हो रही होती है। लेकिन यदि मेरी आंख के देखने की कैपेसिटी रैंडमली ऊपर नीचे होने लगे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि संसार में क्या चेंज हो रहा है। तो चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए जो ऑब्जर्वर है वो चेंजलेस होना चाहिए। इसलिए संसार के प्रति मेरी आंख में चेंज नहीं होता, और जब मेरी आंख में चेंज होता है तो उसको समझने के लिए जो मेरा मस्तिष्क है उसको चेंजलेस होना चाहिए। अगर मेरा मस्तिष्क हमेशा चेंज होता रहेगा तो जो आंख में चेंज आया है उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही जो मस्तिष्क में चेंजेस हो रहे हैं, He said your mind has to be changeless, guys. I think I'm reading it correctly. That was beautifully poetic. उसको जो ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको हम चिति कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, पुरुष कह रहे हैं, उसको चेंजलेस होना चाहिए। अगर वो चेंजलेस नहीं है, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, तो मस्तिष्क में जो चेंज आ रहे हैं वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है कि आपको 0 पॉइंट या कोई ऐसा रेफरेंस चाहिए होता है जहां से आप चेंज को माप पाएं। अगर उस रेफरेंस पॉइंट को आप आगे पीछे भी करते हैं तो जो चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें उतना चेंज आगे पीछे होते रहता है। लेकिन यदि 0 पॉइंट ही रैंडमली चेंज होने लगेगा तो हम नहीं बता पाएंगे कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चेंज वो रेफरेंस पॉइंट के कारण चेंज आया है या फिर वाकई में वो चेंज ऑब्जर्व चीज में हुआ था। तो एक नियम निकल के आता है कि जो ऑब्जर्व चीज है वो चेंज होती रहती है, उसमें नित्य प्रति चेंज होता है, वो परिवर्तनशील होती है। लेकिन ऑब्जर्वर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें चेंज नहीं आता। और यदि इस दृश्य और दृष्टा की सीक्वेंस को अंतिम बिंदु पर ले जाएं तो जो अल्टीमेट ऑब्जर्वर होगा वो अनचेंजिंग होगा। अनचेंजिंग का मतलब ये है कि ना तो फिर उसका जन्म हुआ है और ना उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि जो अनचेंजिंग है वो इन विकारों से नहीं गुजर सकता। इसलिए जिसका जन्म नहीं हुआ और जिसकी मृत्यु नहीं हुई वो समय से परे चला जाता है, वो टाइम बाउंड नहीं होता है। और जिसका जन्म नहीं हुआ है और जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता वो कंपोजिट बॉडी नहीं हो सकता। जैसा कि हमने सीखा था कि जो कंपोजिट बॉडी होती है वो चीजों को जोड़कर बनती है, तो जब बनती है तो बिगड़ती भी है। इसलिए जो अनचेंजिंग ऑब्जर्वर है वो कंपोजिट बॉडी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि वो नॉन फिजिकल है, वो स्पेस में भी इस फिजिकल रियलिटी में नहीं बंधा है। तो दो चीजें आ गई, वो समय के परे है, वो स्पेस के परे है, यानी वो टाइम स्पेस के परे है, यानी वो फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल है। और जब वो किसी लिमिट से नहीं बंधी है तो वो लिमिटलेस है। और इसी लिमिटलेस अनचेंजिंग ऑब्जर्वर को अपने लिमिटलेस सर्वव्यापी चेतन रूप में वेदों में ईश्वर कहा गया है, और इसको भी वेदांत तर्क द्वारा प्रमाणित करता है। तो साथियों, हमने एक और तार्किक विधि से वैदिक ईश्वर का प्रमाण देखा। अब आइए अन्य तर्कों को भी देखते हैं। अब साथियों, जो सबसे बेसिक और सबसे मेन आर्गुमेंट है ईश्वर को सिद्ध करने के लिए वो है कार्य कारण सिद्धांत। और ये आर्गुमेंट ऐसे फ्लो करता है कि अगर हम प्रकृति में देखें तो जो प्रत्येक कार्य है उसका कोई ना कोई कारण होता है। ऐसा हमने आज तक कोई कार्य नहीं देखा, कोई क्रिएशन नहीं देखी जिसका कोई कारण ना रहा हो। इसे ही कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं या कार्य कारण न्याय कहते हैं। ये तो प्रेमाइस 1 हो गया कि कार्य का कारण होता है। अब ये जगत कारण है या कार्य है, इसको पहले हमें समझना होगा। जब हम जगत को देखते हैं तो हम जगत में यानी हमारे यूनिवर्स में देखते हैं कि ये यूनिवर्स बहुत सी चीजों से मिलकर बना हुआ है और लगातार परिवर्तन होता है इसमें। तो ये हमें कार्य जैसा दिखता है, ये किसी की हमें रचना दिखती है, क्योंकि हमें इसमें एक ऑर्डर, डिजाइन और इंटेलिजेंस दिखती है। तो कार्य और कारण में जगत यानी यूनिवर्स जो है वो कार्य है, यानी इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। और अगर हम प्रकृति में देखें तो कारण कई प्रकार के होते हैं। यदि आपको कोई नई चीज बनानी है, नया कार्य करना है, तो आपको कुछ मटेरियल चाहिए होता है, कुछ इंटेलिजेंस चाहिए होती है और कुछ इच्छा चाहिए होती है। जब कार्य कारण सिद्धांत पुष्ट होता है तो यहाँ से अलग अलग दर्शन अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। जैसे अगर आप सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन का मानना है कि जो कार्य है वो कारण में पहले से ही निहित होता है, कार्य को कारण से अलग नहीं किया जा सकता। इसके पीछे वो रीजनिंग देते हैं कि जो नॉन एग्जिस्टिंग है, जो कभी नहीं था, वो एग्जिस्टेंस में यानी अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। तो यदि कुछ आप नया बना रहे हैं, कुछ नया कार्य कर रहे हैं, अगर वो कभी था ही नहीं तो कभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। इसका मतलब वो था लेकिन पोटेंशियल फॉर्म में था। हो सकता है वो अपने कारण में किसी और रूप में निहित हो, उसका रूप भले चेंज हो गया हो, वो ट्रांसफॉर्म कर गया हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो नई चीज बनी है, जो नया कार्य हुआ है, वो पहले नहीं था। उसका एग्जाम्पल देने के लिए वो कहते हैं कि जैसे पेड़ है तो पेड़ बीज से आता है, तो बीज में वो पेड़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से निहित था, चाहे वो इंटेलिजेंस के रूप में निहित रहा हो, चाहे वो पोटेंशियल के रूप में निहित रहा हो, लेकिन वो पेड़ उस बीज में था तभी संसार में आया है। वरना अगर आप रेत का दाना ले लो या सीमेंट ले लो, उससे आप पेड़ नहीं बना पाओगे। पेड़ आप हमेशा बीज से ही बना पाओगे, और जैसा पेड़ बने। Plants are definitely intelligent. I have seen a study
on a bean plant actually, where they had it hanging. If you're aware of bean plants, they kind of like hang. They like to find support, but they had a support pole, and the bean plant knew to grow towards it, and so then they rotated the support pole, and every time they rotated the support pole, the plant knew where to grow towards for the support. So, you tell me if they're intelligent. उसका वैसा ही बीज चाहिए, तो कारण भी निश्चित हमें चाहिए। कारण आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आप आम के पेड़ को अलग अलग तरह के बीजों से नहीं बना सकते, आपको उसके लिए आम का ही बीज चाहिए होगा। अब चूंकि हमने माना है कि हमारा यूनिवर्स जगत कार्य है, रचना है, तो उसका जो कारण होगा, उस कारण में ये जो जगत है, जो यूनिवर्स है, वो किसी ना किसी फॉर्म में निहित रहा होगा। जैसे जो घड़े का कारण होता है मिट्टी, उस मिट्टी में ये पोटेंशियल है कि उससे घड़ा बनाया जा सके। अब ये घड़ा कैसे बनता है? उस मिट्टी को शेप करने के लिए एक इंटेलिजेंस चाहिए कि उस मिट्टी पर किस प्रकार से कार्य हो कि घड़ा बने, और उस इंटेलिजेंस को मूव करने के लिए कोई कॉन्शियस डिसीजन मेकर चाहिए, वो कुम्हार चाहिए जिसके अंदर ये इच्छा उठे कि हाँ ये घड़ा जो है ये बनना चाहिए, और उसके पास वो इंटेलिजेंस होती है जिससे वो मिट्टी से घड़ा बनाता है। ऐसे यूनिवर्स को बनाने के लिए मटेरियल के साथ साथ इंटेलिजेंस तो चाहिए ही, लेकिन उस इंटेलिजेंस को मूव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए एक कॉन्शियस एंटिटी चाहिए, और वो कॉन्शियस एंटिटी इटर्नल होनी चाहिए। वो किसी से जन्म नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यदि वो किसी से जन्म ले रही है तो फिर ये चेन आगे बढ़ती जाएगी और हमेशा हम कारण के कारण पर जाते जाएंगे, और ये एक इन्फिनिट चेन बन जाएगी कि यूनिवर्स को बनाने वाला ये है, उसको बनाने वाला ये है, उसको बनाने वाला ये है। इसलिए अंतिम जो है, जो कॉन्शियस एंटिटी है, उसको इटर्नल होना पड़ेगा, जिससे प्रश्न ना उठे कि उसे किसने बनाया। और वैसे भी कंपोजिट बॉडी में हमने देखा था कि अगर कोई भी चीज जो इटर्नल नहीं है तो उसको कोई ना कोई और यूज कर रहा होगा। इसलिए इटर्नल कॉन्शियस एंटिटी ही वो लास्ट पॉइंट है जहां से यूनिवर्स आ सकता है। और यहां से, इस तर्क से, सांख्य दर्शन वैदिक ईश्वर को प्रमाणित करता है। यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सांख्य दर्शन तो निरीश्वरवादी है, ईश्वर पर बात ही नहीं करता। वो दूसरा विषय है, उस पर मैं कभी और वीडियो बना सकता हूँ और बात कर सकते हैं कि सांख्य भी भले ईश्वर की क्रिया पर टिप्पणी ना करता हो, लेकिन सांख्य वैदिक ईश्वर को रिजेक्ट नहीं करता है। अब साथियों, अगर न्याय और वैशेषिक की माने तो न्याय वैशेषिक उल्टा मानते हैं। वो सत्कार्यवाद में नहीं बिलीव करते कि कारण में कार्य निहित होता है। न्याय और वैशेषिक ये मानते हैं कि हमेशा जो नई रचना होती है, नया कार्य होता है, वो पहले नॉन एग्जिस्टेंट ही था, पहले अस्तित्व में नहीं था, वो अस्तित्व में आता है, यानी वो नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आता है। इसके लिए वो बोलते हैं कि जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी में घड़ा तो था नहीं, तो घड़े की एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन फिर इंटेलिजेंस ने घड़ा बनाया। ऐसे जो धागे हैं उनमें कपड़ा नहीं होता, लेकिन इंटेलिजेंस से हम कपड़ा बनाते हैं। लेकिन न्याय और वैशेषिक ये मानते हैं जो सृष्टि है ये बहुत ही सूक्ष्म अणुओं से बनी हुई है, और ये अणु जड़ हैं, इनकी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन चूंकि अणु डिज़ाइन बनाते हैं, एक ऑर्डर में आते हैं, उनके पास एक गति होती है, तो जरूर ही कोई ना कोई एक कॉन्शियस एंटिटी होगी जो उनको गति देती होगी, जो उनको ये इंटेलिजेंस देती होगी कि किस डिज़ाइन में, किस ऑर्डर में सेटल होना है। तो साथियों, ये कार्य और कारण सिद्धांत के आधार पर ईश्वर को प्रमाणित करने के कुछ तर्क थे। इस वीडियो में सबसे पहले मैंने तर्कों पर ही बात की है, लेकिन इसके अलावा और भी प्रमाण होते हैं जिनके कारण से वैदिक ऋषि मुनि ईश्वर की सत्ता पर बिलीव करते थे। जैसे एक प्रमाण तो वो वेदों का ही मानते हैं, जिसे हम आप्तवचन कहते हैं, यानी वो वेदों की सत्ता में जब बिलीव करते हैं, और वेद चूंकि ईश्वर की बात करते हैं, इसलिए वैदिक ऋषि मुनि ईश्वर को मानते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी है कि प्रत्येक परतंत्र चीज किसी न किसी स्वतंत्र चीज पर डिपेंड करती है, और एक चेन बनती जाती है कि आप किसी पर डिपेंड होंगे, वो किसी पर डिपेंड होगा, वो किसी पर डिपेंड होगा, और अंतिम बिंदु पर जाकर एक इंडिपेंडेंट चीज आपको अवश्य मिलेगी। इस यूनिवर्स में हम देखते हैं कि सारी चीजें किसी न किसी चीज पर डिपेंड रहती हैं। जो हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं वो फिजिक्स के लॉज पर डिपेंड करती हैं। वो जो लॉज हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं वो भी किसी न किसी मेंटल प्रोजेक्शन पर, किसी न किसी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं, और वो जो ऑब्जर्वेशन है वो हम पे डिपेंड कर रही है, हम अपनी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अंत में जाकर कोई ना कोई ऐसी इंडिपेंडेंट एंटिटी मिलनी चाहिए जो किसी पर डिपेंड ना करती हो, जो सेल्फ सस्टेन करती हो, इटर्नल हो, और इस तर्क से भी वैदिक ईश्वर का प्रमाण सिद्ध होता है। इसके अलावा धर्म और मोक्ष से भी रिलेटेड कुछ तर्क हैं। धर्म से रिलेटेड ये तर्क है कि संसार में यदि कोई कार्य होता है तो उसकी नैतिकता कौन डिसाइड करेगा, इसको लेकर भी धर्मशास्त्रों में ईश्वर को प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई कार्य है तो वो सही है या गलत है। कुछ व्यक्तियों के लिए सही होगा, कुछ व्यक्तियों के लिए गलत होगा, वो उनके अपने अपने ऑब्जर्वेशन होंगे। लेकिन क्या कोई एब्सोल्यूट नैतिकता हो सकती है उस कार्य की? और अगर एब्सोल्यूट नैतिकता हो सकती है तो वो किसने डिसाइड की है? इससे भी ईश्वर की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही मोक्ष को, यदि हम दुख में फंसे हुए हैं तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति होगी
जहां पर दुख नहीं होगा। और जब तक मटेरियल वर्ल्ड है तब तक दुख को नहीं हटाया जा सकता। इसका मतलब कोई ना कोई इमटेरियल वर्ल्ड होगा जहां पर दुख ना हो, और उस स्थिति के लिए भी एक नॉन फिजिकल रियल्म चाहिए, एक नॉन फिजिकल स्थिति चाहिए। वो भी प्रूव करती है कि इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड कुछ नॉन फिजिकल अवश्य है। इसके साथ साथ जो कर्म सिद्धांत मानते हैं वो ये मानते हैं कि जो हमें अदृष्ट फल मिलते हैं, आज हमने कर्म किया, उस कर्म का जो फल हमें मिलने वाला है उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए भी एक कोई सुप्रीम एंटिटी चाहिए, और वो भी ईश्वर है। और साथियों, जो मैंने अंतिम 3-4 आपको तर्क बताए हैं, ये तर्क तब आते हैं जब आप वेदों को आप्त वचन के रूप में प्रमाण मानते हैं, यानी कि हाँ, वेदों में जो लिखा है वो सच है, और उसके बाद आप ईश्वर को जब प्रमाणित करने जाते हैं तो ऐसे तर्क दिए जाते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कई तर्क मिले हैं जिनके आधार पर हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने चेतना, ईश्वर या ब्रह्म की सत्ता को प्रमाणित किया है। ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, मैंने जो मेन तर्क थे वो आपके सामने रखे हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे तर्क हैं जो आपको न्याय शास्त्र में, अलग अलग दर्शनों में मिल जाएंगे, जिनको आप आगे भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इन डेप्थ जाना है तो आप हमारे शिक्षण ऐप पर दर्शनों की कक्षाओं में इनरोल कर सकते हैं, और दर्शनों के माध्यम से आप बहुत ढेर सारे तर्कों तक पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप स्वयं से भी बैठकर अपने अंतर्मन में चिंतन करके ईश्वर जैसे कठिन विषय पर, जहां कठिन प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सपोर्ट करते हैं तो आप सभी के लिए कोर्सेज पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट की भी व्यवस्था है। मैं आप सभी का शिक्षण पर स्वागत करता हूं। न केवल आप भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ेंगे, बल्कि जगत के व्यवहार को समझेंगे, सृष्टि को समझेंगे, और उसके माध्यम से अपने भय, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आदि से ऊपर उठकर जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में जरूर साझा करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के विषयों पर प्रत्येक सप्ताह हम वीडियोस लाते रहते हैं। Alright, I'm turning it off. Alright, and like I said earlier, I did do a video on the Vedas, which he says is definite proof of God. That does cover the Upanishads as well, so if you want to knock that out, just go down the Vedic route and read the Vedas. It includes the Upanishads and everything else. You can just watch my video on it. I'll drop a link right now. And my biggest evidence, I guess you would call, of a creator would be the Fibonacci sequence. How there's that pattern out there, and it's just repeats and repeats, and there's just too many weird mathematical things. I think math and just mathematical period proves that there is some type of a creator, whether that be humans creating a simulation that we're stuck in, or a god that laid down all the rules. What do you guys think is the most significant evidence of a creator? Let me know in the comments, please. If you did make it this far, thank you very much. I love you. You are awesome. I really appreciate your support. While I'm here, let me give a shout out to all my sponsors. Maestro Bath, they have beautiful Italian handmade products that ship to your door. Printify, vidIQ, ClickFunnels, I'm forgetting one, Opus Clips, and W Energy Drink. Shout out to all you guys. All the links are in the description. You can buy a t-shirt. I don't have one on right now, but they are for sale with the link in the comment as well. That would benefit me. All the help I can get is much appreciated, because I am unemployable and I have no income, and this is my only chance to have any type of income. So please, if you can, every penny helps, and it'll help me continue to create content. Which also brings me to, if you have something that you would like me to react to, please let me know in the comment section as well. I need some suggestions. Alright, I'm gonna let you guys go. Go love somebody that you don't like, so you can love yourself properly when you look in the mirror. And I will see you guys in the next reaction. I hope you had a good time. I did. See ya. Love you.